Welcome back. In part 1, we solved the first 12 questions of SSC CGL 2017 reasoning. Now it's time to tackle the remaining 13 questions that can truly test your concept and boost your exam score. Let's get started. Hello everyone. You are watching the Quantwala official. In today's session, we are solving the remaining SSC CGL 2017 reasoning previous year question with clear concept, smart trick, and exam oriented approach. To help you solve similar question with confidence. Without wasting any time, let's begin with question number 13. Question number 13 is saying that bad is written as 7, SAP is written as 9, then ban written in the code language. किस कोड में ban को लिखा जाएगा? So we will do it. So here B A D bad is written as 7. So how numbering of the alphabets? B is written as 2, 1 is written as A is written as 1, D is written as 4. On adding, we get 4, 5, 6 and 7. Now, SAP, it is written as 19, it is written as 1, it is written as 16. If we add 6, 9, 10, 16, 3, 36, again we will add 3 plus 6 is equals to 9 because it is written as 9. So, BAN is written as 2 plus 1 plus, what is it? 14. 14, 15, 16, 17. Then we will write 7 plus 1 is 8. So, our answer is 8. So, our answer is option 1. Now, 14th question. In the following question, correct the equation by interchanging any two sign. इन दोनों में से इस इक्वेशन में से किसी दो साइन को चेंज करके हमें इक्वल टू 28 लाना है. सो लेट चेक. सो हियर इन 14th question, do one thing, check with all option one by one. I am also, and we will take it as a homework. Do comment in your answer. Okay, so we will continue with 15th question. What is it? If 4 star 5 percentage 3 is equals to इतना and this equals to इतना, then हमें ये किसके बराबर होगा ये निकालना है. So we will do it. In this question we have to find the relation between the signs. Okay, let us check. If 2 3 into 2 3 to the 6 it 12 नहीं बन रहा है. हम इसमें रिलेशन देखेंगे. मैंने कहा था जब रिलेशन देखने की बात है नंबर्स में तो प्लस माइनस इंटू प्लस डिवाइड इंटू माइनस इंटू प्लस स्क्वायर क्यूब देखते हैं. सो इफ यू डू आई वो 2 into 3, if we take it at square this percentage, then 3 to the 6 6 6 ja, we get 36. Similarly here 4 into 5 we take it as whole power, we take it as a whole power 3. So 5 4 ja 20, 20 ka cube is equals to 8000. So do it same here. What 4 into 3 whole power 3, 4 is a 12, 12 का cube, what is it? 12 का cube, 12 का square 144, again 12, 12 4 is 48, 2 7 1. It is our answer. Okay, so we got our answer is second. Now we move to another question, that is 16th. What is saying? In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark. So what is happening here? Anybody?
Do comment, pause the video, and do comment what is happening here. So we will check. 3 to the 6, 6 5 the 30, 30 into 1, 30, 30 plus 1, 31. How it is going? See, into 4 to the 8, 8 is a 24, 24 into 6, 24 into 6, 144, 144. Okay, then on multiplying all we get here 144, then we have to add 1, that is 145. Similarly here 3 to the 6 into 6 5 the 30, 30 into 1, that is 30. We have to add 30 plus 1 is equals to 31. Okay, similarly here 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 10 7 ja 70. Do 70 plus 1 is equals to 71. So we got our answer. What? That is 71. Now we will move to next question. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले देखिए, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 होगा। अगर मैं इसमें एक अल्टीट्यूड खींच दूँ तो इसमें इसके जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो कैसे निकालते हैं। 1 नंबरिंग स्टार्ट करो और ऐड कर दो, तो 1 + 2 = 3। सिमिलरली अगर मैं देखूँ ये एक ट्रायंगल है, अगर 2 लाइन खींच दूँ तो मैं इसमें नंबरिंग बनूँगा 1 2 3, ऐड करो 1 + 2 + 3 3 4 5, तो इसमें 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ये वाला निकल जाएगा। अब स्क्वायर का देखते हैं। स्क्वायर अगर ये है, अगर मैं ये तो एक स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 0। अगर ये डायगोनल खींच दूँ तो डायगोनल खींचने के बाद कितने ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। सिमिलरली अगर दोनों डायगोनल खींच दो तो इसमें भी जब 2 डायगोनल खींचे जाते हैं उसके बाद से जितने भी हम लाइन खींचेंगे उसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 × 2 = 8 किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं अभी फिगर देखते हैं, इसमें ये 2 डायगोनल, उसके बाद एक ये खींच दिया, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 कितने, इसमें 12 ट्रायंगल, 12 ट्रायंगल ये हो गए। अब इसमें कितने, 3 3 6, तो अगर हम स्क्वायर ही स्क्वायर देखते हैं तो इसमें 12 ट्रायंगल ये हो गए। अगर मैं इन ट्रायंगल, मैंने क्या कहा, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला, इसमें 3 इसमें 3, तो ये 3 कितने हो गए, 3 + 3, इसमें 3, 1 2 = 3, 1 2 = 3, इसमें 12, तो ये हो गए 18 ट्रायंगल। अब देखिए इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से है 2 ट्रायंगल ये बनेंगे +2, और यहाँ से भी इस वाले से 2 ये बनेंगे, तो और लिख दीजिए यहाँ पे +2, तो टोटल 22 आया समझ में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो देखते हैं, सम पेन आर पेंसिल, ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ। सम पेन, लेट्स से इट इज पेन, सम पेन, ये सम पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर,
ऑल पेंसिल आर इरेजर। तो कंक्लूजन पूछ रहा है, कंक्लूजन क्या है, सम पेन आर इरेजर, सम पेन, क्यों, क्योंकि इसका कुछ पार्ट इसमें भी आ गया तो ये ट्रू हो गया। नो पेन इरेजर, इरेजर नो पेन इरेजर ये फॉल्स हो गया। तो इसमें ओनली वन फॉलो, सो आंसर इज ओनली वन फॉलो। ओके, आया समझ में, क्योंकि नो पेन इन इरेजर, क्योंकि लेकिन इस पेन का कुछ पार्ट तो यहाँ है तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डाइस वाला क्वेश्चन है, अपोजिट है, इस वन के अपोजिट में कौन सा होगा। तो इसको भी यहीं पे करते हैं, हमें दो डाइस लेते हैं, चलो फर्स्ट एंड सेकंड डाइस ले लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको राइट से लेते हुए चलिए, ऐसे करके इधर से ऐसे करके चलेंगे, 1 4 2। सेकंड डाइस फर्स्ट एंड सेकंड, हमने फर्स्ट एंड सेकंड से ले रहे हैं, तो इस यहाँ से भी ऐसे ही चलिए, जहाँ से 1 है तो इसका 1, 4 का 5, 2 का 3। देखिए जो ये तो सेम है, इसको हम कैलकुलेट इस यहाँ पे देखते नहीं है, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट बचा है 6। ठीक है, तो इसमें ऐसे चलते हैं, किसी भी दो डाइस से आप ले सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, तो इसका आंसर 4th। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इसका पूरा डाइस का चैप्टर सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बोल रहा है, एक वेन डायग्राम दिया गया है हमें, तो हम इससे देखते हैं, पूछा क्या था, हाउ मैनी पेन आर ब्लू, क्या पूछा है, हाउ मैनी पेन आर ब्लू। तो देखते हैं पेन कहाँ है, ये पेन है, तो पेन का हम ये वाला पार्ट ले लेंगे, जितना भी है ये हमारा पेन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला हाउ मैनी पेन आर ब्लू, ब्लू पेन कितने हैं, तो इसके अंदर जो भी आएगा, अब ब्लू पेन, ब्लू इतना ही है, ये वाला तीनों आ गया, ये नहीं होगा तो इसका हो जाएगा 19। तो व्हाट इज योर आंसर, दैट इज 19। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न, कौन सा पैटर्न कंप्लीट करेगा, लेट चेक। हम यहीं पे इसको कर लेते हैं पहले, फिर ऑप्शन चेक करेंगे। ये एक लाइन ऐसी जाएगी और यहाँ पे एक ऐसे गोला बनेगा, तो यही आंसर यहाँ ढूंढिए कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22। फ्रॉम द गिवन आंसर सेलेक्ट द वन विच इज हिडन, इसके अंदर छुपा हुआ है। तो देखिए ये कहाँ छुपा है, इसमें नहीं छुपा है, इसमें छुपा है ये वाला, ये, तो ये हिडन फिगर यहाँ छुपा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोल्डिंग फिगर का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे फोल्ड किया जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको एक स्क्वायर को इस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, इस कोने को इधर को, इस वाले को इधर को, इस वाले को इधर को, और एक बीच में फिर गोला आ गया। जब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा ये, बीच में एक, अगर हमने बीच में काटा है, बीच में गोला तो आएगा ही आएगा, है ना, लेकिन उसमें ऐसा शेप बनेगा ये वाला। इसमें गोला नहीं है, इसमें गोला है, लेकिन इसमें जब गोला बनेगा तो एक पार्ट इधर ऐसे बनेगा, एक पार्ट ऐसे बनेगा, एक पार्ट ऐसे बनेगा, एक पार्ट ऐसे बनेगा, और बीच में ऐसे गोला आएगा, तो इसका आंसर 2nd। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड, अगर इस मिरर को यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या कहते हैं, कौन सा फिगर बनेगा। अगर मिरर रखा है तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसे कोई फिगर है मिरर की इस साइड, अगर ऐसे करके कोई फिगर है और मिरर की इस साइड, तो ऐसे जाने पे ये ऐसे पलट जाता है, तो ट्रायंगल जब पलटेगा तो ट्रायंगल तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, ट्रायंगल ऐसी का ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो और
है समझ में। दूसरा, ये जो लाइन है, ये वाले ट्रायंगल भी ऐसे ही बनेंगे, ऐसे करके, बट जब इसको करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री वाली लाइन है, इधर जाने पे भी लाइन ऐसी रहेगा और ये ऐसा। तो देखते हैं ये वाला फिगर कहाँ बन रहा है। ये यहाँ वाटर इमेज दे दिया, इन दोनों में तो वाटर इमेज है, तो ये नहीं हो सकता। नीचे देखते हैं कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन, ये वाला। आया समझ में। बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का बचा हुआ उसको देखते हैं। इसको दो मैट्रिक्स दिए हैं बोलते हैं, और जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में 0 से 4 तक नंबर लिखे गए हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 5 से 9 तक। तो देखते हैं। तो देखिए, के कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, के को किससे लिखा है, यहीं पे लिख देता हूँ, देख लेना आप क्वेश्चन को। के इज, यहाँ पे लिखता हूँ, के इज रिप्रेजेंटेड बाई 0, 1 एंड 3, 4, वेयर जेड इज रिप्रेजेंटेड बाई 65 एंड 99। तो हमें पूछा है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है BLAND, ब्लेंड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं दोनों को वो करके। बी, तो यहाँ से छाटेंगे हम बी, ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो बी, अगर के को 0, 1 लिखा है, मीन्स के को पहले इधर का लिखा है फिर इधर का 0, 1, और 3, 4, 3, 4, दिस 3 एंड 4। तो वैसे बी को क्या लिखेंगे, चेक करते हैं। बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ढूंढिए इसमें बी को हम 0, 2 लिख सकते हैं, 0, 2, 0, 2 लिख सकते हैं। बी को हम 1, 0 लिख सकते हैं, 1, 0, ठीक है। बी को हम 4, 4 लिख सकते हैं। ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ पे मिला है हमें, बी को हम 1, 0 लिख सकते हैं। उसके बाद एल देखते हैं, एल ढूंढिए, ये एल को हम 0, 3 लिख सकते हैं, एल को हम 1, 4 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ मिल गया एल। ए चेक करते हैं, ए 0, 0, तो यहाँ मिल गया हमें ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं आप यहाँ पे कि ए तो एक 0, 0 दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं एन, एन क्या दिया है, एन ढूंढिए, 5, 5 दिया है, एन 6 से 8 दिया है, तो एन यहाँ पे 6 से 8 है। डी देखते हैं, डी, वेयर इज डी, डी यहाँ है 5, 9, 5, 9। दूसरा डी ढूंढिए, डी है 7, 8, 7, 8। डी और है यहाँ पे 9, 8, 9, 8, और डी यहाँ है 6, 6। तो यहाँ तो मिला नहीं है हमें, तो ये 1 ऑप्शन गलत, हमने सारे लिख दिए हैं। अब इसमें से देखिए, दूसरा 3, 1 में क्या है, 3, 1 में सी है, तो ये तो नहीं होगा। 4, 4 में क्या है, 4, 4 में बी है, तो ये हो सकता है बी। 20 देखते हैं, 20 में क्या है, 20 में एल, ठीक है। 42 में क्या है, 42 में ए है, ए भी ठीक है। 88 में क्या है, 88 में पी है, लेकिन हमारे पी तो लेटर है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू। सो आंसर हमें मिल चुका है। तो अब एंड दैट्स ऑल अ रैप, वी हैव now completed all 25 SSC CGL 200 2017 reasoning PYQ. I hope this session helped strengthen your concept and improve your problem solving speed. If you found it is useful, please like, share and subscribe the Quantwala official. I will see you in the next previous year question session. Until then, keep practicing and keep learning.